Yes, so next topic is translation, and in this video I am going to speak less, but one more I am going to make. Just try to understand what is translation. So you can start with this example. Quite often we come across expressions like the following. This is very good translation of Mahabharata, right? So very good translation of Mahabharata, because Mahabharata, Ramayana, Bible, Quran, Bhagavad Gita is translated by so many. Ultimate purpose is that the gist, and that's a very valuable text which should be reach to everyone, है ना. तो हर लैंग्वेज में पता नहीं कितने लैंग्वेज में हुआ. फिर one more is, you can quote the same example. Fitzgerald's translation of Rubaiyat of Omar Khayyam is very famous. उमर खयाम बहुत फेमस ऑथर थे, और उन्होंने क्वाड्रेंट मतलब होता है 4 लाइन की पोइट्री, 4 लाइन की, राइट. तो उसी को कहते हैं रुबायत. तो रुबायत को ट्रांसलेशन फिट्जराल्ड ने उसका ट्रांसलेशन किया है, क्योंकि नज़्म, जिसको नज़्म कहते हैं, तो वो बड़ा ब्यूटीफुल नज़्म है जो लोगों तक पहुँचे, उसकी सोल लोगों तक पहुँचे. तो उसको उन्होंने ट्रांसलेट किया है फिट्जराल्ड ने. तो यहाँ पर ये भी सच में ये लाइन बहुत फेमस है कि फिट्जराल्ड्स ट्रांसलेशन ऑफ रुबायत ऑफ उमर खयाम इज़ वेरी मच फेमस. आप ये कोट कर सकते हो एग्जाम्पल. Now, this translation of Premchand's Godan is not very accurate, because 100% translation is not possible, right? So now they are trying to explain what is translation means. Translation is, and what's the precise nature of translation, right? So I am going to tell you that another example. अभी मैं सिर्फ example बता रही हूँ आपको. Another example. Here you can see that you are responsible for wear and tear. जो भी तोड़ फोड़ हुई है वो आप है उसके ज़िम्मेदार. पर वो क्या कह रहे हैं, इसके पहनने और फाड़ने, क्योंकि वियर है और फाड़ने टीयर है के लिए आप जिम्मेदार हैं. जबकि ऐसा तो नहीं है उसका मीनिंग. आप टूट फूट के लिए ज़िम्मेदार हैं, जो हम वो करते हैं ना, एम्बिग्विटी. तो इससे ये भी है कि क्योंकि जैसे ही हमने इसका वो किया, तो इसके पहनने और फाड़ने के लिए. तो वो क्या कह रहा है कि समवन विथ वेरी लिटिल नॉलेज ऑफ ईडियम्स ऑफ इंग्लिश एक्सप्रेशन, इंग्लिश लैंग्वेज विल कम अप विथ translation 1. On the other hand, the person who understands what wear and tear signifies, because that's a phrase, wear and tear, that's a idiom, will translate correctly, right? Translation 2. So this way, translation, problem of translation, because we must have very good knowledge, then only will be able to translate. If you are translating something, so that's a source material, I told you that. And then we have to have very good knowledge about that both the languages. एक लैंग्वेज जिससे दूसरी लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट कर रहे हो. अब जैसे राम मेरा दोस्त है, राम इज़ माई फ्रेंड इज सिंपल इनफ. बट another example, I wondered if this is true, right? यदि यह सच है तो मुझे आश्चर्य है, मुझे इसकी सच्चाई में संदेह है. ये ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए, ये आप पढ़ लेना. अब हम देखते हैं कि डेफिनेशन अगर देखें तो वी मे डिफाइन ट्रांसलेशन एज द एक्ट ऑफ प्रेजेंटिंग अ टेक्स्ट इन अ लैंग्वेज अदर देन वन इन विच इट वॉज ओरिजिनली रिटन. आपको पता होगा गीतांजलि इज़ रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, एंड गीतांजलि इज़ द कंपाइलेशन ऑफ 103 पोएम्स, राइट. And originally Rabindranath Tagore ji has written Gitanjali in Bangla, right? And then he himself translated all 103 poetry and poem into English. So that is translation. But Rabindranath Tagore ji had very good idea about English language and Bangla. That's why he was able to translate. Second thing, that's a soul, that's a meaning. He understood that what he is trying to tell to readers. That's why he himself understand, and beautifully almost same meaning he has presented into English poetry translation. So that is translation. He is telling that what he is saying, that this may appear to be a definition which is good enough. However,
it is not. Why? Because it is quite possible, and sometimes what happened, that sometimes it happens that you translate a text rendering it into another language, but you fail to put across the message contained in the original text. For example, if we take up this sentence, right, इस विषय को लेकर घर जब्त कर लिया गया है. अब इस सभा इस विषय पर ध्यान दे रही. इट इज़ क्लियर दैट फाइंडिंग इक्विवेलेंट इज वैलेंस इज नॉट इनफ, as we can see in translation 1, right? So what he is saying that the house is seized of this matter, जिसके दो ट्रांसलेशन है. इस विषय को लेकर घर जब्त कर लिया गया है, सभा इस विषय पर ध्यान दे रही है, जबकि वो बिल्कुल अनदर वर्डिंग्स यू आर यूज बट देन मीनिंग इज सेम. तो ट्रांसलेशन जो है मैं लास्ट में बता देती हूँ कि दिस में पास फॉर अ जनरल वर्किंग डेफिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन. मोर और लेस यू डोंट हैव टू गिव द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन. वो अगर आप theoretical question करते हो तो आई एम गोइंग टू सेंड यू द डेफिनेशन एंड ऑल, बट फाइनली यू शुड गिव more and more example and try to make them understand that translation is the same idea or notion or message should be delivered into another language. That is the ultimate purpose. It's not word to word, it's not line to line, it's not same punctuation or same expression. In fact, translation is whenever translation is done, so that's a larger than original text. आपको पता है ज़्यादा होता है ट्रांसलेशन, हमेशा ज़्यादा शब्दों में किया जाता है, तो दैट इज़ ट्रांसलेशन, राइट. अब वो कह रहे हैं कि ट्रांसलेशन जो है वो क्या है, किस किस में होता है. तो देखो, ट्रांसलेशन साइंस, क्राफ्ट और आर्ट का. अभी आपको ये एग्जाम्पल बहुत हाईलाइट करना सारे बच्चे. इट्स माय रिक्वेस्ट टू हाईलाइट दिस वन, दैट MP गवर्नमेंट हैज़ टेकन इनिशिएटिव and start engineering and medical in Hindi medium, right? So that you can you imagine that's a whole study material of medical and of engineering. Definitely it is translated into not very tough English, Hindi, rather it's a not बोलचाल का तो नहीं कहेंगे, लेकिन very normal and simple Hindi. So they have to take care. So that's it's not dictionary and machines. Now this is the time that machine translates. We can see that even in your Facebook, Instagram, translator is also there. If you click on it, that your whole poetry will be translated within nanosecond. It will be translated into English or other languages also. What language you would select, it would translate. But then again, machine cannot be translated 100%, right? Anybody. So that's a question. But ये साइंस का मटेरियल बहुत ज़्यादा ट्रांसलेट होता है, क्राफ्ट का होता है और आर्ट का होता है. आर्ट मतलब पूरे नॉवल, पोएट्री एंड ऑल. साइंस मतलब पूरा डिस्कवरी, इनोवेशन, क्रिएटिविटी एंड ऑल. एंड क्राफ्ट मतलब भी वही, जितना भी आप कुछ बनाते हो, तो दैट्स ऑल कम अंडर क्राफ्ट. सो दिस इज ट्रांसलेटेड, राइट? रेसिपीज एंड अदर सो मेनी थिंग्स, पेंटिंग्स एंड का लिटरेचर एंड एवरीथिंग, इट इज translated. So that's you can write. But yes, you should highlight that MP government had taken initiative and engineering and medical started. But yes, if I was talking about the text, that's a very tough medical language converted, medical material is converted into, क्योंकि दवाइयाँ जनरली इंग्लिश के नाम से आती है, तो वो है या नहीं है आई डोंट नो, बट वो सारा बहुत सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, इट्स अ बिग टास्क और हरक्यूलियन task, we can say. It's a big challenge. So they did, and then it's started medical and engineering have already started it Hindi medium, right? So you can quote this example, right? Now another example, look after this piece of work. तो इस काम के टुकड़े के पीछे देखें, जबकि इसका तो ये मीनिंग तो निकाल दिया उन्होंने, लेकिन एक्चुअली क्या है, इस काम को देखें. पीस ऑफ वर्क मतलब ये देखो कितना सुंदर काम है, ये उसका मीनिंग है. तो इस तरह से उन्होंने बताया कि ट्रांसलेशन बहुत चैलेंजिंग है और इतना ईजी नहीं है. अच्छा,
एक ट्रांसलेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन मैं पूरा पूरा नहीं बता रही हूँ, अब भी इसी जो मैंने बोला है व्हाट आई एम स्पीकिंग, ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू कैन जस्ट मेक द नोट्स, राइट। फर्स्ट इज वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। अब वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, जो लड़की अच्छा गाएगी उसको इनाम मिलेगा। ये देख रहे हो, अब जो लड़की अच्छा गाएगी, विच गर्ल वेल सिंग्स टू हर प्राइज विल बी अवेलेबल। जबकि ऐसा नहीं है, द गर्ल हु सिंग्स वेल विल बी गिवन प्राइज, है ना, ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये पूरा वर्ड टू वर्ड अगर हम करते हैं तो मीनिंग भी नहीं आता, पर ये एक ट्रांसलेशन इसी तरीके से होता है कि जो लड़की अच्छा गाएगी, आप इसी को कह सकते हो, ये एग्जाम्पल दे सकते हो, आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो कि जो लड़की अच्छा गाएगी उसको इनाम मिलेगा, द गर्ल। तो पूरा पूरा उसी के वर्ड के नीचे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके एग्जाम्पल दे सकते हो, है ना। फिर दूसरा एग्जाम्पल है दस इट्स मे ब्रॉडर, डस्ट माइन ब्रूडर, दिस इज़ माई ब्रदर। अच्छा देखो, ऐसे वर्ड टू वर्ड, दिस इज़ माई ब्रदर, तो दस इज़ माई ब्रॉडर, ऐसे। तो इस तरह से भी ट्रांसलेशन होता है, जो आपको सुनाई देता है और आप उस तरह से लिखते हो, जैसे फॉरेनर कुछ बोल रहा है और हमारे इंडियन एक्सेंट अलग है, तो आप फॉरेनर एक्सेंट में, इंग्लिश एक्सेंट में या अमेरिकन एक्सेंट में लिखोगे तो उसका ट्रांसलेशन अलग तरीके से होगा, ये बताना चाह रहे हो। दूसरी वैरायटी है लिटरल ट्रांसलेशन। लिटरल, ये वर्ड टू वर्ड था। अब लिटरल ट्रांसलेशन में क्या है, जैसे कि तुम तो आजकल दूज का चांद हो गए हो। अब इसमें आपको मीनिंग समझना है, आपको से वर्ड से कोई लेना देना नहीं। तो अ लिटिल इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस इज दैट्स यू हैव बिकम अ मून ऑफ सेकेंड डे दीज डेज। एक तो ये हुआ। अपेरेंटली सच अ ट्रांसलेशन डज नॉट कन्वे एनी सेंस टू इंग्लिश रीडर्स। अब ऐसे नहीं आएगा, पर दूज का चांद मीन्स रेयरली यू मीट और यू लीव्स द होम, इस तरह का कुछ है। तो कहते हैं तुम तो आजकल दूज का चांद हो गए हो, तो वंस इन अ ब्लू मून एक्चुअली वो है यू हैव बिकम, और यू लीव, यू मीट अस वंस इन अ ब्लू मून। हम डायरेक्ट ट्रांसलेशन कर ही नहीं सकते, पर इसी का ट्रांसलेशन है ये दूज का चांद का। इंग्लिश ट्रांसलेशन मैं मन से बता रही हूँ आपको, दैट इज़ वंस इन अ ब्लू मून, राइट, रेयरली। तो दूज का चांद हो गए हो रेयरली ही है, लेकिन अगर आप उसका मीनिंग देखोगे इंग्लिश में, यहाँ जो उन्होंने किया है, यू हैव बिकम अ मून ऑफ सेकेंड डे दीज डेज, कोई मीनिंग ही नहीं है। तो ये लिटरली ट्रांसलेशन भी बहुत सक्सेसफुल नहीं है। फिर तीसरा है फ्री ट्रांसलेशन, द बेस्ट ट्रांसलेशन। इसको पढ़ लेना अगर डिटेल आप पढ़ना चाहो तो, ये मैं मन से बता देती हूँ। फ्री ट्रांसलेशन में बिल्कुल अभी आप देखो न्यूज़ में, अगर आपके पास टाइम है खाना वाना खाते समय तो आप देख सकते हो। कल मोदी जी बोल रहे थे तमिलनाडु में, तो वो पूरा पूरा ट्रांसलेट कर रहा था ट्रांसलेटर। मोदी जी बोल रहे थे फिर और वो मोदी जी हिंदी में बोल रहे थे और वो उनको तमिल में ट्रांसलेट कर करके बता रहा था। आज राहुल गांधी इंग्लिश में बोल रहे थे और वो फिर तमिल में, दूसरा ट्रांसलेटर होगा लेकिन वो तमिल में ट्रांसलेट कर रहा था। तो ये फ्री ट्रांसलेशन है, जिसमें बहुत ज़्यादा ना वर्ड्स को केयर करना है आपको, ना लिटरेरी मतलब सेंस को, बस उनके तक वो बात गए, चाहे वो दूसरे तरह से जाए, सोल उसकी ड्रॉप नहीं होना चाहिए, बट इस दिस वे ट्रांसलेशन इज़ डन। तो दैट इज़ कॉल्ड फ्री ट्रांसलेशन। एक है कॉन्सेप्चुअल ट्रांसलेशन, कि मान लीजिए सपोज चंद्रयान 3, व्हेन चंद्रयान 3 was started, that when this project was started, definitely they must have sit together, and then they have planned the होल चंद्रयान 3 और आदित्य L1 जो अभी आपने देखा गगनयान जाने वाला है, जिसमें ह्यूमन बीइंग्स भी अभी मून पे जाने वाले हैं, शायद वो गया होगा, मैं अपडेट नहीं हूँ अभी उस पर ये सारे साइंटिफिक जितने भी इन्वेंशंस होते हैं, तो उसमें क्या होता है, इतना इट्स अ वेरी बिग प्लान, राइट। तो अगर अभी गगनयान जा रहे हैं, इसमें 4 साइंटिस्ट जा रहे हैं, एस्ट्रोनॉट्स जा रहे हैं, ये मुझे पता है। तो उनकी ट्रेनिंग, उनकी प्लानिंग, उनका ईटिंग हैबिट, सब कुछ एवरीथिंग, तो दैट इज़ फुल प्लान। तो उस तरह से अगर आपको एक कॉन्सेप्ट को बताना है लोगों को कि व्हाट इज़ गगनयान, व्हाट इज़ आदित्य L1, व्हाट इज़ चंद्रयान 3, तो आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया। अब आपने you were the part of that meeting, and that you understood that what is
टू बी मेड चंद्रयान 3 के पहले हम क्या बनाने वाले, अच्छा वो कुछ इस तरह का होगा। तो उसके अगर आपको प्रेस नोट देना है तो देन यू आर फ्री टू ट्रांसलेट, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट ट्रांसलेट अपने वर्डिंग्स में कर दिया और आपने बॉदर भी नहीं किया कि किसने क्या बोला, हाउ साइंटिस्ट व्हाट दे वर स्पीकिंग एंड व्हाट इज लेफ्ट व्हाट इज एडेड। You just edit it, you just take the idea and then you elaborate. That is called conceptual translation. अब जैसे इसने बताया कि वह खून का घूंट पीकर रह गया। अब उसका खून का घूंट पीकर तो रह गया, तो क्या बोल रहा है, ही अ ड्रॉट ऑफ ब्लड ड्रैंक एंड रिमेंड। ऐसा रह गया तो रिमेंड, कितना गलत, कुछ भी उसका मीनिंग ही नहीं निकल रहा है ना। तो इस तरह के ट्रांसलेशन होते हैं। पर फ्री ट्रांसलेशन में आप ऐसे, ये एग्जाम्पल मैंने पूरा नहीं पढ़ा है इसको, पर मैं बता सकती हूँ कि ये लिखा है कि अगर आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे नॉट सक्सेसफुल, लिटरेरी ट्रांसलेशन बहुत सक्सेसफुल नहीं है, फिर भी सम व्हाट दैट्स फ्री ट्रांसलेशन बहुत सक्सेसफुल है, राइट। अब इलेबोरेट ट्रांसलेशन, क्योंकि आपने महाभारत पढ़ ली, आज भी महाभारत घंटों 4-4, 5-5, 6-6 घंटे और 9-9 दिन की रामायण और महाभारत होती है, और जो प्रीचर्स हैं वो सुनाते हैं, पेंडॉल लगते हैं बड़े बड़े, और वो रामायण सुना रहे हैं, आज ये अध्याय आज वो अध्याय, इसको कहते हैं इलेबोरेट ट्रांसलेशन। क्यों? क्योंकि मान लो गुजराती में हो रही है और ओरिजिनली अवधी में लिखी गई है रामायण, क्योंकि अवध में हुआ है सब कुछ, अवध यानी अयोध्या, तो फिर अवधी भाषा से इंग्लिश में भी लोग बोलते हैं, हिंदी में भी बोलते हैं, मारवाड़ी में बोलते हैं, गुजराती में, ये उसको अब वो इलेबोरेट करके उसका मीनिंग भी बता रहे हैं कि राम, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, आप सेम एग्जाम्पल यू कैन कोट, कि भाई दशरथ जी जब उनके बच्चे नहीं होते और विश्वामित्र के पास जाते हैं कि क्या करें, बच्चे नहीं हैं, कैसे चलेगा पूरा संसार, ये वो, तो वो कहते हैं कि कान के पास उनके सबसे पहले सफ़ेद बाल होते हैं, वो कहते हैं कान के पास से बाल इसलिए सफ़ेद होते हैं क्योंकि बुढ़ापे का सिग्नल है, कान में आकर भगवान कह देते हैं कि अब बुढ़ापा आने लगा, ऐसा, तो सबसे पहले कान के बाल के पास के बाल वाइट होते हैं, ग्रे होते हैं, जो भी होता है। तो ये दिस इज़ काइंड ऑफ इलेबोरेट ट्रांसलेशन, कि उसका मीनिंग उन्होंने विद इन और बिटवीन लाइन समझ लो आप, कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द एक्स्ट्रा मीनिंग, और दैट इज़ कॉल्ड बिटवीन द लाइन्स, कि बिटवीन द लाइन्स जो अनसेड है वो भी आपको समझना है और उसको भी ट्रांसलेट करना है, दैट इज़ इलेबोरेट, दैट इज़ कॉल्ड इलेबोरेट ट्रांसलेशन, है ना। तो ये हो गया। अब उसके बाद अब्रिज ट्रांसलेशन। अब्रिज मतलब ब्रिज, जैसा कि आप नाम से देख रहे हो कि एक ब्रिज बनाते हुए ना, कि ठीक है दोनों का, ये मैं मन से बता रही हूँ आपको, ये सब पढ़ लेना अगर आपको टाइम हो, है ना। तो ये दोनों के बीच में, राजेश गुरमीत के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है, तो दोनों के बीच की बात जो है वो क्या जैसे यह सूटकेस किसका है, तो हु सूटकेस इज दिस, है ना, तो वह शीला का है, दैट्स शीलाज। फिर वो कहता है उसका सूटकेस भारी है, तो हर्स इज़ हैवी, तो वो कहता है कि हाँ वह हमेशा अपने साथ ढेर सारी चीज़ें लाती है, शी ऑलवेज ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ थिंग्स विद हर। ये ऐसा जो ट्रांसलेशन होता है जिसको अब्रिज कहते हैं, क्यों? क्योंकि लिंक ब्रेक ना हो, मतलब डायलॉग्स जब लिखते हैं ना तो वो एक लिंक में लिखा जाता है कि अच्छा आपने ये कहा, अब उसका आंसर ये, आप उसको डीलिंक नहीं कर सकते, वैसे वाले ट्रांसलेशन को कहते हैं अब्रिज ट्रांसलेशन, राइट। तो इस तरह से होता है। अब इन्होंने बताया बैक ट्रांसलेशन, ये एस एल सोर्स लैंग्वेज है, और टी हमने देखा था टेक्स्ट लैंग्वेज है ना। तो सोर्स लैंग्वेज और टेक्स्ट लैंग्वेज कैसे करके होता है, बैक ट्रांसलेशन कहते हैं इसको, ये आप लोग पढ़ लेना। मशीन ट्रांसलेशन जो पूरे आप अभी का एग्जांपल दे सकते हो कि जितने भी बैक ट्रांसलेशन मैं कल बता दूंगी, बहुत ठीक से नहीं पढ़ा है मैंने, फिर भी मैं बैक ट्रांसलेशन, चलो आप लोग ये ऐसा बना लेना, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। मतलब आपने सोर्स लैंग्वेज से उसको टेक्स्ट लैंग्वेज में ट्रांसलेट, सोर्स लैंग्वेज मान लो कि मेरे पास कोई टेक्स्ट है जो इंग्लिश में लिखा है और फिर उसको मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करना है, तो मैंने हिंदी में कर दिया, और फिर अब कोई दूसरा सोर्स ट्रांसलेट जो है वो क्या है, वो इंग्लिश बन गया और उसको वापस से मुझे हिंदी में करना है, तो इसको बैक ट्रांसलेशन भी कहते हैं, है ना। फिर मशीन ट्रांसलेशन, पूरे आजकल फेसबुक और उसमें वो जो सॉफ्टवेयर आ गए, इसको मशीन ट्रांसलेशन। पहले आप सारे ट्रांसलेशन के नाम याद कर लेना, और व्हाट एग्जांपल्स आई हैव कोटेड, ट्राई टू कोट द सेम, अदरवाइज यू कैन यूज़ योर ब्रेन ऑल्सो, यू कैन गिव योर एग्जाम्पल्स ऑल्सो, बट दैट्स अ लिटिल नॉलेज अबाउट ट्रांसलेशन।
So just try to listen to me, and then if you have any confusion, you're most welcome to ask, right? I'm going to make another video on translation tomorrow. Thank you. Bye.